Hello students, my name is Rishabh Agnihotri and I welcome you all to the class of accountancy. Children, in the last class we were discussing about the basic accounting terms, and in those basic accounting terms we reached to the point where we were discussing about liabilities and assets. That was part 1, and today we are going to discuss part 2 of this topic. Sir, part 2 of this topic मतलब ये कि many students have asked me to make a video of assets specifically and especially. तो assets को अलग से समझाने के लिए I am making this video children. And if we talk about assets, so फिर से एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं. Liabilities, we talked about liabilities, two types of liabilities we discussed. That is, first one is current. Firstly it is what? Firstly it is, sorry, one second, let me come on this side. Yes, firstly it is internal liability and second one is external liability. Internal and external. What is this? Internal, and this one is external. Now today we are going to talk about what? We are going to talk about internal and external, and in this we also discussed children that day external is also divided into two parts, that is current liability and non-current liability. These two we have decided, we have discussed earlier also. Now today I am going to discuss about what? Assets. Assets also we discussed further earlier in the video. That is what? First type of asset is fixed and second is current. We discussed both type of assets, what is fixed and what is current. We also discussed about liquid asset. And we very well understand कि वो current assets which are easily convertible in cash are also known as what? Liquid assets. Are also known as liquid assets. इतना सभी को क्लियर होना चाहिए. सो फिर से एक बार, फिक्स्ड एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं? ध्यान दीजिए. फिक्स्ड एसेट्स आर द एसेट्स which are for with us for a longer period of time, and current assets are for a shorter period of time. छोटे समय के लिए जो एसेट्स हमारे पास होती हैं वो करंट होती हैं, या एक और तरीके से कह सकते हैं कि जो आती जाती रहती हैं वो भी करंट एसेट्स होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कैश, आवागमन चलता रहता है, आता है जाता है, ऐसा चलता रहता है. इसी तरीके से if we talk about what? If we talk about stock, स्टॉक गुड्स हमने परचेज किए, सेल किए, फिर नए गुड्स परचेज किए, सेल किए, क्या हो रहा है? गुड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आना जाना चलता रहेगा. तो ये भी किस में आ गए? करंट एसेट्स में. अब करंट एसेट्स वो वाले एसेट्स जो इजीली कन्वर्टिबल हो कैश में. सर एग्जांपल तो दीजिए. हाँ लीजिए ना एग्जांपल, लिक्विड एसेट्स के एग्जांपल लीजिए. आई हैव डन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, मैंने शेयर्स खरीद रखे कंपनी के. वो शेयर्स जो कंपनी के खरीदे हैं बच्चों, आजकल आप जानते हैं सभी कि वी आर what we are doing, we are indulged in what kind of trading? Online trading. और online trading में we very well know that in online trading we can easily sell share anytime, we can easily sell our securities anytime, and after some time we are getting cash in our account. Earlier this process was really very bulky, but as soon as this online platform started, it has eased us, it has made the work very easy. So children, we can say one thing, that liquid assets are the assets which are what? Which are easily convertible in cash. ये वो current assets होते हैं. These are those current assets
विच आर इजिली कन्वर्टेबल इन कैश। तो लाइबिलिटीज की बात हमने कर ली, एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स की बात कर ली और लिक्विड एसेट्स की बात कर ली। सर इतना तो लगभग पिछले वीडियो में बात कर ही ली थी, तो ये वीडियो आपने क्यों बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों कि ये वीडियो क्यों बनाया गया। तो आइए समझें। फिक्स्ड एसेट को आई एम गोइंग टू डिवाइड इन टू पार्ट्स। फिक्स्ड एसेट्स आई एम गोइंग टू डिवाइड इन टू पार्ट्स, दैट इज tangible and intangible. Tangible and intangible. What do we mean by tangible and what do we mean by intangible? Let us understand that, children. Now tangible means जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, ये मार्कर, आई ओन दिस पेन, ये मेरा है। आई हैव बॉट दिस फ्रॉम मार्केट, मेरे पास इसकी ओनरशिप है। ये मेरा क्या है? एसेट है। दिस इज माई प्रॉपर्टी, दिस इज माई एसेट। मैं इसको टच कर सकता हूँ? बताइए। बिल्कुल टच कर सकते हैं। फील कर सकते हैं छू के? यस। प्लास्टिक है, प्लास्टिक का बना हुआ, फील कर पा रहे हैं? यस। तो दैट कैन बी टच, that can be felt, all these come under the category of what? Tangible asset. सर और एग्जांपल दीजिए। हाँ तो लीजिए ना एग्जांपल। बिल्डिंग क्या है? टेंजिबल एसेट है भाई। और बिल्डिंग के साथ फर्नीचर टेंजिबल एसेट है। ये व्हाइट बोर्ड टेंजिबल एसेट है। तो इसी तरीके से जो चीजें हम टच कर सकते हैं वो एसेट्स which we can touch, which we can feel are coming under the category of tangible assets. But at the same time, children, intangible assets, what do we mean by intangible assets? Let's try and understand these intangible assets. So if we talk about intangible assets, दिख रहा है आपको सभी को? Intangible assets. Now if I talk about intangible assets, तो इसी tangible का opposite कर दीजिए, that is the assets which we cannot touch or feel, which we cannot touch कर नहीं सकते उसको, feel नहीं कर सकते, we cannot see, दिखेंगी भी नहीं। tangible दिखेंगी आपको, दिख रही है, देखिए पेन दिख रहा है, दिखेगी। intangible नहीं दिखेगी। तो सर अगर दिखेगी नहीं तो ये कैसी एसेट है? यही तो intangible एसेट है। सर हमें नहीं समझ आया, एग्जाम्पल दीजिए तो समझ आए। हाँ तो लीजिए एग्जाम्पल। आप सभी ने नाम सुना गुडविल? सर लिखिए तो हम देखें। चलिए देखिए, लिख रहा हूं मैं। ये देखिए, गुडविल क्या है? गुडविल बताइए। आपने सभी ने सुना होगा कि भाई उनकी बहुत अच्छी गुडविल बनी हुई है मार्केट में। गुडविल, साख, he is having a very good goodwill, he is having a very nice, he is having a very good amount of goodwill in market, he is famous for his work, famous है इस चीज के लिए, उनकी गुडविल है मार्केट में। all you have heard this, सभी ने ये वर्ड सुना होगा। लेकिन अभी तक आपको ये पता नहीं होगा कि ये गुडविल एक एसेट, और एसेट भी कौन सा? एसेट भी कौन सा बताइए? टेंजिबल नहीं, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल कौन सा एसेट आता है? किस कैटेगरी में आता है? फिक्स्ड एसेट। समझ रहे हैं सभी लोग? इनटेंजिबल एसेट फिक्स्ड एसेट में आता है, एंड टेंजिबल ऑल्सो फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टेंजिबल, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल में हम ले रहे हैं एग्जांपल गुडविल का। क्यों? गुडविल को देखेंगे नहीं, हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से कि गुडविल वो जा रहा है, हाँ गुडविल हेलो, वी कैन नॉट डू दिस थिंग। इन द सेम मैनर पेटेंट्स, आपने कई बार सुना होगा, if one person is doing something, he is experimenting something, और उसका एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? सक्सेस हो गया, तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना पेटेंट बेचता है, सेल कर देता है। अब वो पेटेंट दिखता नहीं है हमें, दिखेगा नहीं। पेटेंट मतलब राइट दे दिया उसने कंपनी को, उसने किसी कंपनी के साथ डील कर ली। सर एग्जांपल दीजिए, लीजिए एग्जांपल। कार हमने इन्वेंट करी विच कैन वर्क, विच कैन रन ऑन सोलर एनर्जी, ऐसी कार डेवलप कर ली है
बताइए, ये मैंने अगर टेक्नोलॉजी ढूंढ ली है, नाउ आई एम रेडी टू सेल दिस टेक्नोलॉजी टू अ कंपनी, और वहां से बहुत अच्छे खासे पैसे मुझे मिलेंगे। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज पेटेंट। मैंने उनको राइट दे दिया कि अब आप ये टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, विच हैज बीन इन्वेंटेड बाय मी। ये पेटेंट क्या है? ये मेरा एसेट है। गुडविल मेरी क्या है? एसेट है। ट्रेडमार्क मेरा क्या है? एसेट है। ऑल दीज थिंग्स आर एसेट। लेकिन इनको छू नहीं सकते, इनको देख नहीं सकते, इसको टच नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ intangible asset. So children, I hope so these 2 points are very clear. Now last point, assets में एक और एसेट की हम बात करने जा रहे हैं। ये कौन सा एसेट होता है ये समझे। इसका नाम होता है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट। सर ये फिक्टिशियस एसेट क्या है? फिक्टिशियस एसेट को हम डिस्कस करेंगे बच्चों आगे आने वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो, माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट एक्सपेंडिचर, अबाउट रिसीप्ट्स, and in that video I am going to discuss about this fictitious assets. ठीक है, तो आज हम यहीं तक समझेंगे। इन टॉपिक्स में आप अपनी अपनी बुक में पढ़िएगा। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दीज टॉपिक्स, सो आई वेलकम योर डाउट्स। मेरा तो हमेशा से कहना ही है, ये अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं मैं कि अगर कोई है डाउट तो उसको कर दीजिए आउट, उसको मन में मत रखिए, पूछ लीजिए, so that doubt can be clarified and your doubt can be solved, your query can be resolved. In this manner we have to study children. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है। Along with that, start sharing this video and like this video children, and along with this, if you have not subscribed, then subscribe also, because I hope that you people have enjoyed watching this video. Thank you children, have a good day, bye bye.